gratitude, respect and love. Thank you. So, first I'll introduce myself. I'm Dr. Tushar Charan. I hope, can anybody tell me? Everybody can hear nicely? Please put in the chat. Okay. Thank you, Ayushi. Thank you. So, I'm Dr. Tushar Charan, and for me, astrology has been like, हिंदी में बोले तो हमारे खून में ज्योतिष दौड़ती है. My father is an astrologer, past 50 years. Like वो जब 10 साल के थे, तब से he'd been studying astrology, and all my knowledge comes from him, from all the books I've read, or rather I would say practical knowledge. All my practical knowledge comes from Papa, because he did the whole study. And just a second. Dakshina, please do something that all the participants are automatically enter the group. Please do something about that. Okay. So, where was I? Yeah, my father has studied, उनके पास हजारों पत्रियां उनके आंखों के आगे से निकली, so many predictions he's given. So उन्हीं से मैंने सारी knowledge ली है. तो मुझे तो in a way I got everything served in a platter. कि सारी knowledge उनके द्वारा दी गई है, उनका सारा yes knows, this is about him. Then हमारे लिए ज्योतिष ऐसा हुआ करता था, like when I was just 6 years old, 6-7 years old, तो our grandmother, तो हमारा everyday ritual होता था कि we used to pick up this newspaper, and हमारे दादी माँ हमको पूरी mythological stories बताती थी कि how planets work, and Saturn का ये, और आज राशिफल तुम्हारा ये है, आज का दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा. So with these kind of knowledge, was पूरा दिन हमारे, पूरी जिंदगी हम यही सुनते सुनते we all grew up. Certainly, मेरी पत्री में भी कोई planets है जिसी की वजह से I've become an astrologer. But for us, it was a very normal thing in our house, this everyday study of astrology. So my father made his first organization in 1999. Or at that time, I became an executive director in this firm. Little did I know कि someday I would become the vice president. या someday पापा की ये legacy forward ले जाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा. So for now, पापा का पूरा, I am a partner with पापा in this organization. इसका, हमारी firm का नाम है करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान. तो शोध का मतलब आप जानते हैं, it is mainly research. जो हमने ग्रंथ पढ़े, या पापा ने जो ग्रंथ पढ़े, फिर हमने उसको 2:4 किया, and then the predictions, whatever we predict, why they come out to be true, because सारा हमारा validated है. So this is about astrology. अब आपको बता, हमारी, this is about me, मैं कहाँ से आती हूँ. We have our 4 centers, one in Jodhpur, the other one is in Delhi, third we have in Ahmedabad, and fourth I had opened in Jaipur. It's been 5 years. I've been doing it professionally, thanks to my guru in that scene. Earlier I wasn't working, but with the guru's blessings and energies, I've started doing astrology professionally. Now, astrology होती क्या है? Astrology, अगर आप लोगों से मैं पूछूं, if I ask you what is astrology, your answer would be zodiac signs. मेष राशि होती है, एरीज होता है, वृषभ होता है, आपका ये जवाब होगा. बट एस्ट्रोलॉजी इतनी सी नहीं है. इट इज नॉट दिस लिमिटेड. एस्ट्रोलॉजी हर वो चीज है, जो कपड़े मैंने पहने हैं, the gadgets I'm using, the phones I have, the room I have, the house where I live in, the parents I have, the children I have, the spouse I have, हर चीज हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, उसमें हर छोटी से छोटी डिटेल होती है. अब वो कैसे बनता है? जब हम बॉर्न होते हैं तो यू नो वी हैव अ सोलर सिस्टम. सो अर्थ भी घूम रही है, बीच में सन है, उसकी चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं. सो जब हम बॉर्न होते हैं, उस समय जहां हमने जन्म लिया, जिस भी जगह,
उस पल जो भी इन प्लैनेट्स की रेज पड़ रही है तो उनके इफेक्ट से हमारी पथरी बनती है. फॉर दिस जब भी हमारे पास लोग आते हैं हम कहते हैं प्लीज टेल अस द डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ये 3 चीज इसीलिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि मान लो अभी कोई बच्चे ने जन्म इंडिया में लिया, किसी ने अमेरिका में लिया, किसी ने अफ्रीका में लिया, तो उन सब का प्लैनेट जो ये चार्ट बनेगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हल्का फुल्का, बिकॉज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ये कैलकुलेशंस बेस्ड होती है. एक तो ये पॉइंट होता है. अब हमारा ये पर्टिकुलरली चार्ट क्यों बनता है, इसका मैंने अभी एक बहुत अच्छा सेशन लिया, कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी, जो मैं बहुत जल्दी रिपीट करूंगी. तो आप लोग भी वो देखिएगा. इट्स ऑल्सो अ फ्री सेशन. इन दैट आई हैव टॉक्ड कि क्यों हमारा एक पर्टिकुलर चार्ट बनता है, क्यों हम पर्टिकुलर सितारे लेके पैदा होते हैं, वो सारी नॉलेज उस वाले सेशन में है. इट्स अ ब्यूटीफुल सेशन. पिछली बार भी 200-250 लोग थे और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो 500 होते. सो आई विल ऑर्गेनाइज दैट क्लास. Yeah, I'm speaking in both the languages. I have a beautiful session being constructed with karma and astrology, which tells us that why we were given a particular chart. हमें क्यों दिया गया था certain prediction. So ये तो बात हो गई astrological chart की. Now I can see questions. Please don't mind. I'll address all the questions at the end of the session, because the flow of the session gets obstructed. So definitely I will answer all your questions, and meanwhile my sister is sitting with me, so maybe she would also address few of the questions. So हम एक छोटा सा example लेते हैं. As I can see, there are majority women, or even if there are other people. So हमारे लिए सबके लिए ब्यूटी एक बहुत एलिमेंट रहता है. All of us wants to look good. हम सब सुंदर लगना चाहते हैं हर समय. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? See, there are 2 kinds of beauty. One is external, other one is internal. So external तो God gifted हो गई कि ये जो मेरा face है, ये जो मेरे features है, मेरी eyes है, ये तो past life का कुछ scene हुआ और God has gifted me. Nothing I can do about it. But there are other factors. The attitude, the मन, जिसे हमारा अगर मन खुश होता है तो हम सुंदर लगते हैं. If we are happy internally, then we look beautiful. There are sometimes the way people talk. If you go into a party or some gathering and the way you talk, everybody gets attracted towards the style of the way you talk. तो उसका कौन सा कारक होता है? Mercury. Mercury is the planet of communication. बुध जो planet होता है हमारी पथरी में, वो हमारा communication skills कैसा है. और बुध planet, every planet has been assigned a particular category in our astrology. तो बुध प्रिंस की कैटेगरी में है. प्रिंस क्या होता है? राजकुमार. राजकुमार क्या होता है? जवान. तो जिनका भी वेल प्लेस्ड मर्करी है या जिनका भी बहुत अच्छा प्लेस्ड बुध प्लैनेट है, तो वो लोग बड़े यंग लगते हैं. उनकी झुर्रियां भी नहीं होती फेस पे. और आप जब इन लोगों से मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अरे आपको देख के नहीं लगता आप कितने बड़े बच्चे हैं. You don't look like that you have this grown up children. So ये सारी चीजें we come to know by a well placed Mercury. अब आपका बुध अगर weak है तो अगर हम, there are other remedies, we will talk about it later, but अगर normal remedies we will say बुध का color होता है green. So I would suggest that eat more green vegetables, salads, sprouts. तो अगर हम ये चीजें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी. We will look younger. तो it makes sense कि planet को healing करने के there are many ways. Some ways are by eating certain things. Some ways are by wearing certain things. Some ways are कि कोई और हमारे behalf पे कोई mantra chanting कर ले, उससे हमारा planet heal हो जाए. तो एक बुध होता है जो हमें हमारी बातों से लोगों को attract करता है. एक होता है Venus जो हमारी बाहरी खूबसूरती को enhance करता है. तो what we can do? Venus के क्या कारक होते हैं? What are the things that are associated with Venus?
luxuries, beauty. So if I wear beautiful clothes, if I wear beautiful jewelry, if I'm wearing a very nice smelling perfume, so if I go into a party, people would say, wow, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? Then people get attracted towards me. And अगर मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ, सुंदर दिख रही हूँ, तो this is how. So you know, if somebody comes to me, उनका Venus सुंदर नहीं है, maybe they don't have very good, beautiful features, I can tell them, do these things. जिससे कि, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि wherever they go, उनको लोग देखें, appreciate करें, या at least उनको, लोगों को पता तो चले कि तुषार had come into a party. I should not go unrecognized. So this is about beauty. तो चंद्रमा, अब चंद्रमा का तो मून, you know, you must have heard this in हिंदी कि वो पर्सन चांद जैसी खूबसूरत दिखती है, चांदनी जैसी उसकी आभा है. सो चंद्रमा को सबसे ज्यादा ब्यूटी का कारक माना है. तो चंद्रमा के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाइट चीजें होती है चंद्रमा की सारी. सो यू कैन ड्रिंक मिल्क. पानी का मेन कारक है चंद्रमा. मून साइन इज अ वाटर बेस्ड साइन, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वी शुड ड्रिंक मोर वाटर फॉर आवर हेल्थ. अभी हम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पियेंगे एवरी डे, ऑब्वियसली आवर स्किन विल गेट चार्ज्ड अप, तो हम सुंदर ही लगेंगे. तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में हमें हमारी वीकनेसेस पता चलती है, हमें हमारे प्लस पॉइंट्स पता चलते हैं. तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है. प्लस पॉइंट्स है, उसको देख के खुश हो जाए कि ओके, मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम स्पिरिचुअल पर्सन. खराब चीजें हैं कि जैसे मेरा चंद्रमा वीक है, आई कैन वेयर अ पर्ल, मोती पहन सकती हूँ मैं काफी सारे डोनेशंस कर सकती हूँ चंद्रमा रिलेटेड, तो आपका वो ठीक होने लगेगा. ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं होगा कि जैसे किसी का वेल प्लेस चंद्रमा, उतना इफेक्ट तो नहीं आएगा, बट थोड़ा इफेक्ट आएगा. अब और सारे लोगों का क्या इश्यू होता है? मेनली एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन. सबको अपने बच्चों का बड़ा होता है. तो एस्ट्रोलॉजी में हम हमारे बारे में ही नहीं जानते, वी नो अबाउट आवर ऑफस्प्रिंग्स आल्सो, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू हैव. हमारे बच्चे कैसे होंगे, ऐसा भी हमारे उस चार्ट से पता चलता है. एक तो हमारे चार्ट से पता चलता है, एक हमारे बच्चे के चार्ट से पता चलता है कि वो कैसा होगा. कई बार ऐसा होता है कि 2 तरह के बच्चे हैं. एक बच्चा है बहुत अच्छा पढ़ाई में है, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, ही परफॉर्म्स वेरी वेल, ही कम्स फर्स्ट इन क्लास, मे बी हिज जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, हिज मर्करी इज वेल प्लेस्ड, and there are certain other factors also. Then there is another child who doesn't perform very good academically, he doesn't score very good marks, उसके अच्छे नंबर नहीं आते, तो पेरेंट्स उसको बहुत डांटते हैं because they are not aware कि इस बच्चे का क्या इश्यू है. So when they come to an astrologer, for instance they come to me, मैं उनका पत्री पढ़ के I can tell them, listen, आपका बच्चा अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, योर चाइल्ड विल नॉट परफॉर्म गुड अकेडमिक वाइज, बट उसका मार्क्स बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा जा सकता है, वो आर्मी, पुलिस सर्विसेज इसमें चला जाएगा, या उसका वीनस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो वो आर्ट्स में चला जाएगा, वो बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है, वो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है. सो यू नो, कितनी सारी नॉलेज हमको इस एस्ट्रोलॉजी से पता चलती है कि हर छोटी चीज आपकी लाइफ से रिलेटेड, हर छोटी चीज उस चार्ट में होती है. हमारे इन-लॉज कैसे, हमारे पेरेंट्स कैसे, हमारा पति कैसा, हमारा बच्चे कैसे, हमारा घर कैसा, हमारी गाड़ी कैसी, हमारी शक्ल कैसी, हमारा कलर कैसा, हर चीज पता चलती है. तो जो मेरा बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्लास है वो 4 डेज का क्लास है. ऑब्वियसली उन 4 दिनों में आप ये तो नहीं सीख पाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फॉल्स होप दैट यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये बेसिक क्लास है. बेसिक्स क्या होते हैं? ABC. सो आई विल टेल यू, अभी वी विल गो फर्दर एंड आई विल टेल यू मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी. सो आई विल टेल यू ऑल दोस थिंग्स जिससे कि आपको अपनी पत्री का पता चल जाएगा थोड़ा बहुत. सेकेंडली, व्हेन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, आप कभी भी ज्योतिषी के सामने जाते हैं तो वो जो आपको बातें बताता है, से अबाउट ही सेज कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, तो जब आपका सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य पिता के कारक है,
तो मे भी आपका अपने पिता से डिस्प्यूट रहता होगा, या कई बार हम देखते हैं कई बच्चे जन्म लेते हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। काफी सारी चीजें होती हैं, या आपकी आई साइट वीक रहती है सूर्य की वजह से, तो देन ही कैन टेल यू कि आपका सूर्य वीक है। तो जब आपने मेरी क्लास करी हुई होती है तो आपको पता होता है कि ओके यस इसका ये सही बोल रहे हैं, तो आपका एक विश्वास उनके प्रति होता है। देन यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, एंड वो फिर जो भी आपको बताए अपनी लाइफ के बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे आपको एबीसी पता है तो आपको समझ में आता है कि CAT कैट, ओके ये कैट होता है, ये बिल्ली होता है। तो दिस इज अबाउट इट। We will talk many things about it, but first let us go to the topic कि हमारा session क्या होगा basics of astrology. So I have two sessions. One is basics of astrology. Then second is going to be advanced course of astrology. हाँ, वो क्लास करने से आप खुद अपनी पूरी की पूरी पत्री पढ़ सकेंगे। And that class is a long class, but जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इतना नॉलेज जानना है, वो क्लास करे। पर बेसिक्स तो आई वुड सजेस्ट हर पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्योतिष हमारे वेदों में लिखी गई एक साइंस है पूरा, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल न्यूटन ने डिक्लेयर किया, तो क्या ग्रेविटी पहले नहीं थी? ग्रेविटेशनल पुल पहले नहीं था ऑफ कोर्स था, बट उसने ये बताया। वैसे ही एक महर्षि पराशर है जिसके बारे में भी हम जानेंगे। We have महर्षि पराशर who had made a big ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया बनाया है, जिसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा है कि अगर सूर्य यहाँ होता है तो ऐसा होता है। तो पूरा वो पुराण है, और उस पुराण के ही साइमल्टेनियसली एक रेमेडीज का भी पुराण उन्होंने बनाया है कि ये सारे टोटके, ये सारे रेमेडीज करने से one can lessen the effect of your planets. One can obviously nullify, तो कुछ नहीं होता है, but उन planets का effect कम हो सकता है। जैसे कि अगर वीनस स्ट्रॉन्ग करने से ऑब्वियसली आप ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर तो नहीं हो सकते, बट आप सुंदर लग सकते हैं। सो साउंड प्रॉब्लम, प्लीज others check, is everybody suffering with the sound thing? I think sound is good at my end. Please check yours. नहीं तो use your headphones. उससे आपको अच्छी आवाज आएगी. Okay. So let us move forward with our session. What we are going to talk in basics of astrology. Okay. So ये हमारी क्लास होगी. Just a second. ये हमारी क्लास होगी स्टडी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये हमारा संस्थान का नाम है जो नीचे आपको दिख रहा है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। Okay. So as I told you, what is astrology? Astrology हमारी लाइफ का एक चार्ट है which tells us these are our plus points, these are challenges in our life, obstacles in our life. So by this is a tool given to us to understand who we are. हम क्या चीज है, इससे हमें पता चलता है हमारी लाइफ की वीकनेसेस क्या है, हमारी लाइफ के गुड पॉइंट्स क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है, क्या चीजें। जैसे कि मुझे मेरे पापा से ये पूरी नॉलेज विरासत में मिली है, तो कुछ ना कुछ मेरी पथरी में ऐसा है। मेरे फादर ने मेहनत करके सीखा सब कुछ, तो वो उनकी पथरी थी, मुझे उनसे सारी कुछ मिल गई बातें, ये मेरी पथरी है। तो ऐसी सारी चीजें हमारे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से पता चलती है। एंड अबाउट कर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट हमें हमारे कर्मों का पता चलता है कि क्या हमारे ऐसे कर्म रहे
जिससे हमें क्या चीजें मिली, क्या ऐसे हम कर्म करें जिससे कि हम हमारे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस से बच सके. Now, so this is astrology. Then there are certain types of branches of astrology. तो एक तो होती है natal astrology. What is natal astrology? आपका जो birth chart होता है, what we read in that is called natal astrology. जो आपकी लग्न कुंडली होती है, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो आपकी natal astrology होती है. फिर होता है mundane astrology. Mundane astrology is for all over the world. पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हाउ इज द फाइनेंशियल सिचुएशन, जैसे कि अभी पैंडेमिक की एक सिचुएशन चल रही है, तो दैट ऑल थिंग्स वी कम टू नो अबाउट द फ्रॉम द mundane astrology. Then financial astrology, as the name denotes, ये हमारे finances के बारे में बताती है. What type of financial things, हमारे assets क्या है finances wise, हमारे weaknesses क्या है, all related about our finances. Then is our medical astrology. This is again very helpful because this tells us what diseases we are going to have in our life and how we can heal them, how much they are going to get healed, what kind of surgeries we will have. हमारे जीवन में कैसे कैसे रोग हमें होंगे, क्या वो रोग लॉन्ग टर्म होंगे, क्या वो रोग शॉर्ट टर्म होंगे, क्या हमारे जीवन में सर्जरीज होगी, ऑपरेशंस होंगे. All this comes under the medical astrology. Then is the relocation astrology. Relocation क्या होता है? Where we are going to stay. हम कहाँ जाके सेटल हो, where we are going to go for our further education, हम कहाँ higher studies के लिए जाते हैं, are we going to live closer to the beaches, are we going to live in the mountains, हर चीज, हर वो चीज, are we going to, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जैसे कि कई लोग जाके फॉरेन लैंड्स में सेटल हो जाते हैं, अपने होमलैंड से, इंडिया से बाहर जाके सेटल हो जाते हैं. ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी गेट टू नो थ्रू relocation astrology. Then muhurat. Muhurat is very important part of astrology. Why? Because आप देखते हैं in India, whenever somebody is going to get married or somebody is going to do their business, start their business, they all find out the best muhurat, कि कौन से मुहूर्त में हम हमारा काम शुरू करें ताकि we get maximum benefit out of it. तो शादी and business के लिए तो we of course go to the pandit because there are a lot of calculations, हम खुद नहीं कर सकते. But day to day life में how we can see मुहूर्त for like, जैसे मैंने मेरी ये क्लास begin की, तो मैं कौन से मुहूर्त में इसको शुरू करूं क्लास को, या छोटा छोटा थिंग्स वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ की वी वांट टू बाय अ कार, सो एट व्हाट टाइम शुड वी गो टू द स्टोर एंड बाय आवर कार. सो you know, we are in this energy world, everything is energy. So when we begin things with good energies, they become prosperous and they have growth. When we start things in wrong energies, कई बार आपने देखा होगा कई सारे लोग बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं, कई सारे बिजनेस हम शुरू करते हैं और वो बिजनेस फिजल आउट हो जाते हैं, दे डोंट वर्क आउट. सर्टेनली हमने रॉन्ग टाइम्स में शुरू किया होगा उनको, हमारी पत्री के हिसाब से भी, हमारी प्लैनेटरी सिचुएशन के हिसाब से भी, वी मस्ट हैव स्टार्टेड देम एट रॉन्ग टाइम्स. देन एक और चीज होती है प्रसन्ना. नाउ देयर आर पीपल, प्रश्न कुंडली उसको हम हिंदी में बोलते हैं. There are people who do not have their patris. कई बार लोग आते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमारा टाइम नोट नहीं किया, तो for these people we establish a प्रश्न कुंडली for them. ये प्रश्न कुंडली बनाई जाती है. एक तो उसके लिए बनाई जाती है, एक और चीज के लिए बनाई जाती है प्रश्न कुंडली कि आपने अभी तक क्या किया जिंदगी में, क्योंकि जब आपका वो चार्ट बना वो तो आपको एक पास्ट लाइफ से मिला, बट उस दिन से, जब से आपने जन्म लिया से लेके अब तक आपने क्या किया, उसका भी हमको थोड़ा बहुत इससे पता चलता है. अब प्रश्न कुंडली कैसे होती है, हमारे दिमाग में एक थॉट आया, सो अ सीड केम इनटू आवर माइंड, एक विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुआ,
देन हमने उस विचार के बारे में सोचा, वी पॉन्डर्ड ऑन दैट थॉट, देन वी गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ बर्थ ऑफ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक प्रश्न का जन्म होता है। तो ये पूरा सीक्वेंस एक बच्चे के जन्म की तरह हो गया कि माँ के वूम में एक सीड हुआ, फिर वो बच्चा 9 महीने ग्रो करता है और फिर वो बच्चे का जन्म होता है। सो अ थॉट टू अ क्वेश्चन, सो प्रश्न कुंडली इस बेसिस पे बन जाती है। देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सो हमारे इंडिया में, सॉरी, हमारे इंडिया में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है, देर आर लाइक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड मेनी टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट इन इंडिया वी फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको हिंदू एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसको हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। अब हम अगर ज्योतिष को डिवाइड करें, ज्योति एंड इश, ज्योति क्या हो गई, लाइट, इश क्या हो गए, भगवान, वन हु रेंडर्स लाइट। तो ज्योतिष क्या हो गई, स्टडी बाय लाइट, ये ज्योतिष शास्त्र हो गया कि हमारे जीवन में एक प्रकाश की तरह एक ज्ञान आया, जो कि ज्योतिष शास्त्र है। ये ओरिजिनली महर्षि पराशर के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने हर एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज दी है, और उनका वृहत पराशरा होरा शास्त्र, ये एक बड़ा सा एनसाइक्लोपीडिया या बाइबल कह लो, वैसा एक शास्त्र है। मेरी भी काफी नॉलेज वहीं से आती है। देन देर आर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी ये ब्रांचेस हैं। पहली पराशरी, जो कि महर्षि पराशर द्वारा बनाई गई है पूरा, द होल साइंस कम्स फ्रॉम महर्षि पराशर। सेकेंड इज जेमिनी, this also, all the science of Vedic astrology comes from Maharshi Gemini. Then there is Nadi Shastra. Nadi Shastra is more popular in southern India. ये हमारे दक्षिण भारत में ये प्रचलित है। इसमें क्या होता है, पाम लीव्स होती है जिसपे ये पूरा शास्त्र लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे तो उसका ऐसे ऐसे रिजल्ट आएगा। So on the palm leaves, the whole shastra is being written, and by reading all this, we can just know ki what these planets would have in our patri. Then there is Krishnamurti. ये भी बहुत popular है, KP astrology it is called. So this is based on all the calculations, mathematical calculations. So we also follow this. Then there is another one, ताजिक शास्त्र। अब ताजिक शास्त्र इज अ वर्षफल, हमारा पूरा ईयरली जो हम लोगों को जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको पूरा एक साल का जो बना के देते हैं, दैट कम्स अंडर ताजिक शास्त्र। वर्षफल पूरा 1 ईयर का प्रिडिक्शन आता है, इवन डे टू डे भी आता है। दिस ऑल कम्स अंडर दिस टॉपिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पत्री। आपने देखा होगा ऐसा चार्ट होता है हमारा लग्न कुंडली का, जिसमें ये हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, क्योंकि 12 राशियां होती है। सो उस हिसाब से 12 घर होते हैं। हर घर का मीनिंग अलग है। एवरी हाउस हैज बीन गिवन बाय सर्टेन क्वालिटीज। सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी हाउस रिमेन्स सेम फॉर एवर, हमेशा ये सेम रहती है सब लोगों के लिए। अब आपकी पत्री में जरूर यहाँ नंबर्स अलग अलग देखते होंगे। किसी के जो फर्स्ट हाउस मैंने लिखा है वहां पे किसी का 5 होता है, किसी का 7 होता है। उसके बारे में वी विल लर्न इन आवर बेसिक्स क्लास, बट फॉर नाउ फर्स्ट हाउस इज व्हाट वी आर, हम क्या चीज हैं वो, दैट डिपिक्ट्स आवर फर्स्ट हाउस। देन सेकेंड हाउस हम हो गए, देन हमें क्या जरूरत होती है, फैमिली। सो सेकेंड हाउस टेल्स अस अबाउट आवर फैमिली, व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट्स, कौन से कुल में, कौन से घर में, वेयर वी आर गोइंग टू टेक बर्थ। देन इट इवन टॉक्स अबाउट आवर वेल्थ, हमारे, क्योंकि
परिवार में जन्म ले लिया, अब आपने किसके घर में जन्म ले लिया, राजा के घर में ले लिया, या आप आगे चल के क्या होता है, that all comes in the second house. Wealth, family and speech. Then third house is your siblings, आपके भाई बहन कैसे होते हैं, courage. Then fourth house is your mother, आपकी माता कैसी होती है, और आपका घर कैसा होता है, आपका सुख कैसा होता है। तो माँ से ही तो हमें सुख मिलता है, माँ से ही तो घर बनता है। तो ये सारी चीजें हम जब फोर्थ हाउस किसी का देखते हैं तो वी आर एबल टू टेल समबडी दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मदर, आपकी माँ बड़ी तेजस्वी है, या आपकी किसी की माँ होती ही नहीं है, या किसी के जन्म लेते ही, मतलब माँ तो होगी ऑब्वियसली, बट आपके जन्म लेते ही आपकी माँ की मृत्यु क्यों हो गई, वो सब कुछ हमारे को इस फोर्थ हाउस से पता चलता है। या किसी बच्चे के जन्म से उसकी माँ का बहुत अच्छा होता है, वो ऑल ऑफ अ सडन कुछ बढ़िया बिजनेस करने लगती है या सम थिंग्स, एंड देन हमारा घर कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ हाउस वी विल हैव, डू वी हैव अ लग्जूरियस हाउस, या हम झोपड़ी में रहते हैं, या हमारे पास गाड़ियां कैसी है, ऑल दीज थिंग्स। देन फिफ्थ हाउस टॉक्स अबाउट आवर चिल्ड्रन, हम हो गए, हमारा परिवार हो गया, हमारे भाई बहन हो गए, हमारी माँ हो गई, अब हमारे जीवन में कौन होते हैं, हमारे बच्चे। What type of children we are going to have, this we come to know by this house. And दूसरा होता है what kind of knowledge we are going to have, हमारी education कैसी रहेगी, हमारी productivity कैसी रहेगी, all this comes under fifth house. Then comes our sixth house. Sixth house होते हैं हमारे दुश्मन, what type of enemies we will have, what type of obstacles we will have हमारी जिंदगी में, hurdles क्या होंगे, diseases क्या होंगे, डेट्स क्या होंगे, हमारे जीवन में ऋण। कई लोग कई बार आते हैं कि हमारे लाइफ में कर्जा तो खत्म ही नहीं होता, तो इस घर में उनके कुछ अजीब, कुछ नॉट सो गुड प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, इसी वजह से उनके लाइफ में कर्जा रहता है, कोर्ट केसेस होते हैं, मेनी थिंग्स वी सी थ्रू दिस। देन कम्स आवर सेवेंथ हाउस। अब देखिए सेवेंथ हाउस हमारे फर्स्ट हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो फर्स्ट हाउस हो गए हम, सेवेंथ हाउस हो गया द अदर पीपल इन आवर लाइफ। तो सबसे पहला तो कौन हो गया, हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस। सो सेवेंथ हाउस डिपिक्ट्स हर वो पर्सन जो हमारे अलावा जो हमारी लाइफ में होता है, मेनली हमारा पार्टनर, लड़कियों के लिए उनका पति, लड़कों के लिए उनकी पत्नी। एक तो ये, एक हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, कि कैसे बिजनेस पार्टनर्स होंगे हमारी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है लोगों को बड़ा फायदा होता है, दे हैव 2-3 पार्टनर्स इन बिजनेस, समटाइम्स वी रेकमेंड समबडी कि आप खुद ही करें, don't get into partnerships. All this is depicted by seventh house. Then what type of marriage you are going to have, do you have hurdles in your marriage, या effortlessly हो जाएगी, अच्छा पति मिलेगा, कैसा not so अच्छा पति मिलेगा, all this comes under this. Then comes हमारा eighth house. Eighth house हमारा life, longevity, how long we are going to live, हमारी डेथ कैसे होगी। ऑल्दो मेरे फादर का रूल है, we don't predict negative things, so death we do not predict for anybody, क्योंकि जीवन मृत्यु विधि हाथ। but certainly we can tell you कि आपकी जिंदगी में लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड्स आते रहेंगे, तो ये हम एट्थ हाउस से जानते हैं। प्लस वी इवन नो, जैसे किसी का बच्चा जन्म ले लिया एंड दे आर वेरी कंसर्न कि हमारे बच्चे की लाइफ कैसे, लॉन्गेविटी कितनी रहेगी, उम्र कितनी रहेगी, वो भी वी कम टू नो थ्रू दिस। देन कम्स आवर नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारी जिंदगी का बेस्ट हाउस होता है, बिकॉज इट्स अ डेस्टिनी हाउस। हमारी जिंदगी में गुड लक से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। सो सर्टनली मेरा ये डेस्टिनी हाउस स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वाई मुझे ये ज्योतिष का ज्ञान प्लेटर पे मिला है। ये आपका पिता का भी घर होता है, इसीलिए मुझे मेरे पिता के द्वारा ये ज्ञान मिला है, किसी को माँ के द्वारा भी मिलता है। So all those people, like if we take up मुकेश अंबानी, तो उनको अपने पिता से विरासत में मिला, तो certainly उनका ये नाइन्थ हाउस इफेक्टिव होगा। Now comes the 10th house. 10th house is our कर्म का घर, हम कैसे काम करते हैं, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा करियर, व्हाट टाइप ऑफ करियर्स। तो इससे हम देखते कि कौन सा पर्सन डॉक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, बिजनेस करेगा, ऑल दिस कम्स अंडर दिस 10th हाउस। देन इज आवर 11th हाउस। 11th हाउस हमारे गेन्स का, लॉटरी का घर होता है। तो कई बार हम देखते हैं कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया और they are
वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड उनके बहुत सक्सेसफुल हुआ बिकॉज उनके लॉटरी का योग अच्छा होगा, उनके वेल्थ का योग अच्छा होगा. सो ऑल दिस कम्स अंडर दिस हाउस. देन 12th हाउस इज आवर लास्ट हाउस. फर्स्ट ये हमारा एग्जिट होता है. तो फर्स्ट हाउस में हमने जन्म लिया, 12th हाउस में हमारा एग्जिट, हमारे एक्सपेंडिचर, हमारा फॉरेन ट्रैवल्स, हमारा मोक्ष, ये सारी चीजें हम 12th हाउस से जानते हैं. सो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्लास. देन 9 प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. 9 प्लैनेट्स कौन से होते हैं? सन, मून, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु एंड मर्करी. या 5, 6, 7, 8 और एक कौन सा रह गया? Okay, there are 9 planets: Sun, Moon, Venus, Jupiter, Mercury, Mars. So ये 9 planets हैं. ये 9 planets हमारे ये जो पहले मैंने बताए थे हाउसेस, उनमें कहाँ प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ पता चलता है. अब प्लैनेट्स हमारी लाइफ में, प्लैनेट्स डू नॉट कंट्रोल अस, वो सिर्फ डिपिक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं व्हाट ऑल वी हैव इन आवर लाइफ. जैसे कि घड़ी समय बताती है, उसके अंदर आर्म्स होते हैं, वो समय बताते हैं कि 3 बज रहे, 4 बज रहे. घड़ी समय नहीं होती. वैसे ही ये प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि हमारे को बहुत अच्छा फादर मिलेगा, मदर मिलेगा, घर मिलेगा. ऑल दीज प्लैनेट्स टेल अस. जैसे मार्स किसी का बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो वो पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, गुस्से वाला भी होगा, वो आर्मी में भी चला जा सकता है, पुलिस फोर्सेस में चला जा सकता है. उसका मार्स कहीं और, मंगल कहीं प्लेस्ड ऐसी जगह, तो उसकी लाइफ में सर्जरीज बहुत होंगी, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे. ऐसी नॉलेज हमें प्लैनेट से मिलती है. देन हमारी 12 राशि होती है, 12 जोडियक साइंस होते हैं, और इन सब का देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इनका ऑर्डर फिक्स्ड है. जैसे कि एरीज मेष राशि, उसके बाद वृषभ टॉरस, उसके बाद मिथुन जेमिनी, कर्क कैंसर, लियो सिंह राशि, कन्या राशि इज वर्गो, तुला राशि इज लिब्रा, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, धनु सैजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि. ये 12 राशियों का वन आफ्टर द अदर सीक्वेंस रहता है. अगर आप भूल जाए, न्यूज़पेपर उठाएं, उसमें हमेशा ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है. चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर उठा लें. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस कि जैसे मैं लिब्रा स्टार साइंस की हूँ, मैं तुला राशि की हूँ, तो मेरी ये क्वालिटीज है, मेरी पर्सनैलिटी इस वजह से है. कोई मेष राशि का है तो उसकी वो क्वालिटीज है. दिस ऑल वी विल स्टडी इन बेसिक क्लास. देन एक नक्षत्र होता है. अब आप देखें, देर आर 28 नक्षत्र, 27 नक्षत्र एक होते हैं, 27 कॉन्स्टिलेशंस उनको बोलते हैं. एक जो 28th होता है वो सबके लिए होता है, अभिजीत नक्षत्र. नाउ जैसे कि 10 लोग सिंह राशि के हो गए, 10 people are of Leo sign, so these 10 people are different from one another. तो वो 10 people क्यों डिफरेंट है, वो इस नक्षत्रों से पता चलता है. तो दिस नक्षत्र स्टडी इज पार्ट ऑफ आवर एडवांस क्लास, बिकॉज ये बहुत ही डीप और थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो दिस वी डोंट टच इन आवर बेसिक क्लास, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि कैसे एक आदमी दूसरे से डिफरेंट होता है. देन राहु केतु. अब राहु केतु आर शैडो प्लैनेट्स. जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें से जो 7 प्लैनेट्स हैं उनको 7 डेज दिए गए हैं, राहु केतु को नहीं दिए गए हैं. इसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे बेसिक क्लास में. बहुत अच्छी आई विल टेल यू, गिव यू अ नॉलेज कि क्यों राहु केतु को शैडोई प्लैनेट्स हैं, क्यों उनको मेन प्लैनेट का दिन का दिया नहीं गया दर्जा. बट जितने भी ग्रहण इक्लिप्सिस होते हैं वो इन राहु केतु की वजह से होते हैं. सो वी विल टॉक. जैसे अभी वेरी रिसेंटली वी हैड सोलर इक्लिप्स. सो व्हाई डिड दैट हैपन? This all is because of Rahu Ketu. So we will discuss in basics class why this happened. So this is going to be my basic class. ये सारी चीज हम उसमें कवर करेंगे. You can take a screenshot
so that you can understand ki what all I'm going to teach in my basic class.